Hello students, a very pleasant welcome to you all in my class, in the class of Business Studies, class 12, where we were dealing with the concept of financial management and came to know that what is the financial management and how it works in the organization for the achievement of the goal, and what are the various major decisions that a firm take while performing the function of financial management. During that, we have already discussed that what is financing decision and what are the various affecting factors of the financing decision. And apart of that, we will also discuss the dividend decision and various affecting factors related to that, but we will also try to remind that what are the investment decision and what are the affecting factors related to that. So let us talk again to make a clear concept about the financial management and the various major decisions that took under that. So let us talk again that what is financial management. We can see that the management of finance to improve efficiency and effectiveness in an organization, in the organization to achieve the goal smoothly and the target related to the goals should be optimized for the resource and with the optimal concept means procuring the resources for future purpose also. I hope the concept is very much clear to you, and under this concept we have discussed the various major decision that were financing decision, investing decision, and today we will deal about the dividend decision. Since we have already discussed that what is financing decision, and here we have discussed that the financing decision means the decision that is taken by the organization related to the distribution of fund. So these two items are already discussed with their affecting factors. Now we are going to be what is the dividend decision and what are the major factors that affect the decision of the dividend distribution or the profit distribution of an organization. So let us talk about the dividend decision. If we talk about the dividend decision means the decision of an organization related to the distribution of the fund or the profit. The decision
of the organization related to the fund or related to the distribution of the profit to the investors or the provider of the fund or the provider of the fund, either it may owner's fund or it may borrowed fund. But the important thing which we want to mention that these decisions should be taken with assuring of maintenance of reserves and provisions for contingency of the organization, for contingencies of futures. So I hope the concept is very much clear to you. Under this concept of dividend decision, I told to you that dividend decisions क्या होते हैं. dividend decisions का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाने वाले वो फाइनेंशियल डिसीजन जिसमें हम प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एसर्टेनमेंट करते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट और किस तरीके से प्रॉफिट दिया जाएगा, चाहे वो इन्वेस्टर जो है आपके ओनर्स फंड के हो या बोरोड फंड के हो. उस इन्वेस्टर ने हमारे पैसे को, अगर अपने पैसे को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है तो विथ अ पर्सपेक्टिव और विथ अ ऑब्जेक्टिव टू अटेन सम मोर एज अ प्रॉफिट और सम टाइम एज अ इंटरेस्ट और एनी अदर मीडियम. तो इसे कितना पैसा देना चाहिए और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि जो पैसा हम दे रहे हैं उससे पहले इस बात को एश्योर करा लेना चाहिए कि जो भी प्रोविजन या जो भी रिजर्व है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड टू द कंटीजेंसीज और द एक्सीडेंसेस दैट मे टुक प्लेस इन फ्यूचर, it should be also maintained in a enough and convenient manner. So I hope the concept of the financial dividend decision is very much clear to you. Under this concept, I told to you that dividend decision is a part of financial decision when which the organization or the managers of the enterprise decide that how the profit should be distributed among the investors of the fund or deployers of the fund with assuring the adequacy of the maintenance of reserves and provisions for the contingencies that may took place in future, so that in future if we want to manage any damages or any contingencies, then we may have some enough profit, some enough financial resources so that we may face them easily, smoothly and conveniently. And now let us talk about the factors affecting the dividend decisions, as through which we came to know that how we take the dividend decision sound and conveniently.
डेबिट डिसीजन। ठीक है, डेबिट डिसीजन के अफेक्टिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली सबसे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उससे हमें एक साउंड प्रॉफिट या एक पॉजिटिव रिटर्न जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेबिट इज द मेन प्रॉफिट विच वी आर गोइंग टू प्लान रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये अश्योर होना चाहिए कि जिस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, क्या हमारे पास वो एक्चुअली वो प्रॉफिट करंट ईयर या प्रीवियस ईयर में अवेलेबल है भी या नहीं है। और अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो हम इस टाइप की कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मीन्स टू से दैट वी मस्ट हैव टू अश्योर दैट देयर इज some balance in the profit related to the activities of current year or the previous year बिजनेस से हमें करंट ईयर या प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए, तभी इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इस बात को भी अश्योर करेंगे कि क्या करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट के साथ मर्ज होकर के एग्रीगेट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा या सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट होगा या केवल प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीन्स द अमाउंट अकरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अश्योर्ड। अवेलेबिलिटी एंड occurrence of profit, यानी हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो क्या वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, और अगर है तो कितना, यानी कि प्रीवियस ईयर का मिला करके या केवल प्रीवियस ईयर का या फिर केवल करंट ईयर का। मीन्स द देयर शुड बी अ क्लियर नॉलेज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द डिविडेंड डिसीजन। एंड लेटर ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें ये अश्योर कर लेना चाहिए कि जो भी अर्निंग, जो भी इनकम, जो भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट से लेकर के उस प्रॉफिट को ध्यान में रखकर हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसी कंडीशन में जो भी पॉलिसी बनाई जाए हम इस बात को अश्योर करके बनाएं कि इस पॉलिसी को हम लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे या इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर एक बार पॉलिसी बन जाती है और उस पॉलिसी के हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो हमारे इन्वेस्टर डिससेटिस्फाइड होते हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर वो डिससेटिस्फाई होंगे तो डेफिनेटली अपने पैसे को विड्रॉ करके शायद किसी अदर बिजनेस में या किसी अदर सोर्स ऑफ अर्निंग में डिप्लॉय कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फंड की स्कैर्सिटी होगी और गुडविल खराब होगी। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए while making the dividend policy, making or framing the dividend policy, it should be clear that rate of dividend should plan very conveniently
as the reduction में हम the financial position of the firm. Financial position of the firm. यानी एक बार जो प्रॉफिट हमने जो रेट ऑफ प्रॉफिट हमने डिसाइड कर लिया, अगर हमने उससे कम रेट पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये कम रेट का प्रॉफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सकता है और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को हम उस डिफाइंड रेट ऑफ डिविडेंड से कम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और मेजर फैक्टर्स हैं related to the influencing of dividend decisions that may pointed out as you can see here that some of other influencing factors of dividend decisions are mentioned here, that the growth opportunities means chances of growing business activities of the organization in near future. Cash flow position means the position or the flow of cash in the organization. Taxation policies, legal restrictions and contractual obligations are the major influencing factor of determining the dividend policies or the dividend decision. So let us talk these all head to head one by one. When we talk about the growth opportunities, it means the opportunities or the chances that a firm have to face in near coming future. आने वाले फ्यूचर्स में अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख रही हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें हमारे डिविडेंड रेट को एक कंट्रोल्ड मैनर में एक फ्रेम करना चाहिए और डिविडेंड डिसीजंस को भी एक कन्वीनियंट तरीके से जो है लेना चाहिए, ताकि अगर हमारी फ्यूचर में हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, इमरजेंसी में कुछ फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो हम इस रिटेन्ड अर्निंग से जो हमने एक साउंड फाइनेंशियल डिविडेंड डिसीजन से अर्न किया है उससे आप काम चला सकें और विदाउट रेजिंग फंड और विथ रेजिंग मिनिमम फंड हम अपने काम को आगे कंटिन्यू कर सकें। सो द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डिविडेंड रेट, यानी it is indirectly related, actually it is indirectly related। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जितनी ज़्यादा होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमें so as we can say the cash flow position means the availability of cash, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैश जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतनी ही कन्वीनियंटली हम अपनी डिविडेंड का डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और अल्टीमेटली अगर हम बात करें टैक्सेशन पॉलिसी की, सो टैक्सेशन पॉलिसी जितनी हाई होगी हम उतना ही कम जो है डिविडेंड रेट पे कर पाएंगे टू द इन्वेस्टर्स, और जितनी लो होगी
उतना ही ज़्यादा हम अपने डिविडेंड होल्डर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड पे कर पाएंगे। जहाँ तक बात करें लीगल रेस्ट्रिक्शंस की, लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी जितनी ज़्यादा हार्ड होंगी, जितनी ज़्यादा टफ होंगी, लीगल रेस्ट्रिक्शंस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही कम वैल्यू में हम अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे टू द इन्वेस्टर्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मींस the promise or the obligation that the firm has taken while raising the fund from a particular source। ठीक है, the promise given while taking फंड्स को लेके समय जो प्रॉमिस हमने लिया था उस प्रॉमिस के बेसिस पे हम अपने फंड को, अपने पैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो भी प्रॉमिस है उसको भी हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम अपने प्रॉमिस को प्रॉपर तरीके से होल्ड कर पाएँ और उस प्रॉमिस के बिहाफ पे, उस प्रॉमिस के बेसिस पे हम अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। सो दीज आर द मेजर अफेक्टिंग फैक्टर्स रिलेटेड टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। मींस इन फैक्टर्स को अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो मैनेजमेंट है अपने ध्यान में रखे तो सफिशिएंटली इनफ तरीके से वो जो है अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करते हुए अपने बिजनेस को रन करा सकता है, ग्रो करा सकता है और साथ ही साथ अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकता है। So let us recall all the concept covered in the class, and so that we may have the complete and clear reminder of all the topic covered. That is, first of all, we have described that what was the financial management. It means the major decisions that the firm took while operating the business activities. These major decisions have categorized under three categories, that is financial decision, investment decisions and dividend decisions. फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने बात की कि हम हमारे पैसे को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, कहाँ से रेज करें और कितना रेज करें। इसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने बात की कि जो पैसा, जो फंड हमने यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रेज किया उस पैसे को कहाँ, कब और कितना डिप्लॉय करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर एक्टिविटी के लिए भी हमारे पास इनफ तरीके से कैश अवेलेबल रहे और साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म या कैपिटल नीड्स हैं आने वाली हैं या हो रही हैं उनके लिए भी इनफ कैश अवेलेबल रहे। साथ ही साथ अगर हमने डिविडेंड डिसीजन की बात की तो डिविडेंड डिसीजन means the decision that are took by the management for the distribution of the profit that has been earned by the deployment of such fund in a proper manner। इसके बाद जो है अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हमने ब्रीफली समझाया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, जो फंड हमने फाइनेंसिंग डिसीजन से रेज किया है उसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नीड्स को जो है सेटिस्फाई करने के लिए हम फंड कितना डिप्लॉय करते हैं और कहाँ डिप्लॉय करते हैं। इस बेसिस पे हमने स्कोप को कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट दो कैटेगरीज में जो है आइडेंटिफाई किया, जहां बताया कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन को हमने वर्किंग कैपिटल में आइडेंटिफाई किया, कैटेगराइज किया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के अफेक्टिंग फैक्टर्स में हमने चार मेजर अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात की। बोला कि कैश फ्लो जितना ज़्यादा होगा हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन उतना कन्वीनियंटली ले पाएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात हमने की कि जितना साउंड होगा हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन उतना साउंड तरीके से ले पाएंगे। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी उतनी ही ज़्यादा बेटर तरीके से हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले पाएंगे और रिस्क फैक्टर जितना ज़्यादा होगा हम वर्किंग कैपिटल को उतना ज़्यादा प्रेफर करेंगे।
इसी तरीके से अगर डिविडेंड डिसीजन को रिकॉल करें हम, तो यहाँ हमने बताया कि डिविडेंड डिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को लेकर के एक डिसीजन है जो जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टर को कब कितना पैसा और कैसे देना चाहिए, ताकि कंटीजेंसीज को मेंटेन करते हुए हम अपने डिविडेंड इन्वेस्टर्स को हैप्पी कर सकें। और इसके बाद जो है इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स में हमने कहा कि अर्निंग जो है, हमारी अर्निंग कितनी स्टेबल है, उससे स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, और साथ ही साथ जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैश फ्लो पोजीशंस हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा while taking a good dividend decision. So hope the entire concept is very much clear to you. We will meet and talk again in the next lecture. Till then, take care and goodbye.